everyone and welcome to the Hog Trader channel. In today's video, we will discuss and analyze about all major indices in the market. So before proceeding to the video further, you can check out our stocks which we had discussed in our last few sessions on YouTube and other platforms like Instagram, Facebook, Discord and Telegram group. Stocks like Britannia, UPL, Bata, Titan and all other stocks like ACC which are had given a good return and still other are at in range and have a high potential. You can cross check all the stocks on our social platforms. Link I will provide in the description box. You can see if you have seen my charts, not even a single stocks had moved against our analysis, and we had catch every stock from the bottom with a minimum stop loss. So try to understand trading is not about winning or losing, it's only about the low risk and high reward game. So let's analyze for the next week. Let's get started. Starting the Nifty first. So Nifty में जैसे हमने last week भी discuss किया था, Nifty is in range. So between all time high and lower level जो हमने discuss किया था 21,700. और मैंने ये भी डिस्कस किया था जब तक 21,700 इंटैक्ट है नो नीड टू पैनिक इन द मार्केट. डाउन साइड में मार्केट के आने के चांसेस कम हैं. एंड आई वॉज बुलिश from the last week. This week I was clearly bullish and I had clearly told that I am bullish on Nifty and Bank Nifty both, especially on Bank Nifty. So अब डिस्कस करते हैं इस वीक के लिए. Now the range is from all time high and the lower range is changed to 21,800. So this is for this week. Nifty again all time high और जो नीचे का लेवल है 21,800. ये एक रेंज रहेगी इसमें हम निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं. बाइस की बात करें, बाइस इज स्टिल बुलिश. तो जब तक हमें जो हमारा एनालिसिस है हमें बुलिश साइन शो कर रहा है, सो व्हाई शुड वी प्लान फॉर द डाउन साइड ट्रेड और फॉलो एनी न्यूज़. आई पर्सनली नेवर फॉलो एनी काइंड ऑफ न्यूज़ एंड नेवर वॉच एनी न्यूज़. सो आई फॉलो ओनली माई स्ट्रेटजी एंड माई लेवल्स. People who follow me regularly, who are my on social platforms, get connected, they know the power of my levels. So try to follow your levels, trust on your strategy and believe in your system. So for next week we can see a little bit downside, we can see a downside movement. एक नीचे को pull back आ सकता है, but bias is still bullish. We will buy on dip till 21,700 is intact. ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए. सो बी बुलिश ऑन निफ्टी. कमिंग टू लोअर टाइम फ्रेम. तो ऑन लोअर टाइम फ्रेम, ऑन 15 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम, जो आज का ये फेक कैंडल है जो आज 11:15 पे ओपन हुई थी, अवॉइड दिस. सो वी हैव डिमांड जोन एंड अ सप्लाई जोन. द लोअर डिमांड जोन इज फ्रॉम 22,137 to 22,054. And the second demand zone is from 21,874 to 21,821. Upside supply zone target as a 22,704 to 22,792. तो ये हमारा सप्लाई जोन और दो डिमांड जोन है. ऑलरेडी जो क्लोजिंग हुई है वो एक सप्लाई जोन में हुई है. सो बाइस हमारा बुलिश है. सो इन केस मार्केट गैप डाउन होती है और फ्लैट ओपन होते ही एक डाउन साइड पर मूवमेंट देती है, then we will plan a long trade from the demand zone. Target हमारा supply zone रहेगा. Keep the stop loss below the demand zone. ये हमारा निफ्टी का प्लान रहेगा. अगर फर्स्ट डिमांड जोन को फेल करती है then again we will plan a second trade from the demand zone. Second demand zone target हमारा सेम supply zone साइड का रहेगा. इन केस मार्केट गैप डाउन, सेकेंड सिनेरियो ये रहता है कि अगर फ्लैट ओपन होके अपसाइड जाती है और गैप अप ओपन होती है, then we can see a little bit reaction from the supply zone and again the bias will be bullish. फिर हमारे डिमांड जोन चेंज हो सकते हैं. दैट आई विल अपडेट ऑन माई टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड चैनल्स. सो स्टे कनेक्टेड ऑन माई सोशल प्लेटफॉर्म्स. कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट. तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में मैंने लास्ट वीक क्लियरली कहा था कि इस वीक में मेरा बुलिश बायस है. इवन मंडे को ओपनिंग में, जैसे ही मंडे ओपनिंग हुई थी, एक डाउन साइड को मूवमेंट आया था एंड फ्रॉम द डिमांड जोन यू कैन क्रॉस चेक ऑन टेलीग्राम. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पिन पॉइंट डिमांड जोन से एक रिएक्शन मिला एंड स्टिल द बायस वाज बुलिश एंड एक अपसाइड को मूवमेंट है. So this is the power of levels.
सो स्टिल अभी एक रेंज है बैंक निफ्टी की, जैसे मैंने कहा था ऑल टाइम हाई अराउंड 50,000 एंड लोअर साइड 46,575। तो ये एक रेंज है बैंक निफ्टी की एंड वी आर बुलिश टिल दिस लेवल इज इंटैक्ट। कमिंग टू शॉर्टर टाइम फ्रेम, अगेन निफ्टी की तरह एक सप्लाई जोन में आज ही क्लोजिंग हुई है। लोअर साइड द स्विंग लो इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 46,575। Demand zone is from 47,535 to 47,153। अपसाइड जो टारगेट हमने डिस्कस किया था 48,800 का, वो हमारा टारगेट रहेगा। द सप्लाई जोन विच इज़ फ्रॉम 48,804 to 49,023 एंड द सेकेंड सप्लाई जोन इज़ फ्रॉम 49,373 to 49,620। तो ये हमारे दो सप्लाई जोन हैं जो हमारे टारगेट रहेंगे। 48,800 इज़ आवर फर्स्ट टारगेट। इसका भी निफ्टी की तरह सेम प्लान है। अगर ये फ्लैट ओपन होते ही डाउन साइड आता है, देन फ्रॉम द डिमांड जोन वी कैन प्लान फॉर द टारगेट अपसाइड फॉर द फर्स्ट सप्लाई जोन अराउंड 48,800 एंड सेकेंड टारगेट सेकेंड सप्लाई जोन। सेकेंड प्लान वही रहेगा, अगर गैप अप ओपन होता है और अगर ओपन होते ही अपसाइड को मूवमेंट आता है, देन वी कैन सी अ रिएक्शन फ्रॉम द सप्लाई जोन। इफ़ यू आर ऑलरेडी टेकन फ्रॉम द डिमांड जोन, जहाँ से एक पिन पॉइंट 47,000 के अराउंड एक मूवमेंट आया था, एंड ट्रेल योर स्टॉप लॉस, कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। एंड इन केस अगर कोई मेजर चेंज आता है निफ्टी बैंक निफ्टी इनके चार्ट्स में, आई विल अपडेट ऑन माई टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट दैट इज यूरो यूएसटी। यूरो यूएसटी ने एक बुलिश साइन दिया है लास्ट वीक, एक अपसाइड को अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। सो स्टिल नाउ द इम्पॉर्टेंट लेवल, अगर इम्पॉर्टेंट लेवल की बात करें तो दिस स्विंग हाई अराउंड 1.09826 का स्विंग हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल को क्रॉस किया देन आई विल मेक फॉर अनदर टारगेट्स ऑन अपसाइड। तो हमारा ये जो नीचे का लेवल जिसको हम प्लान कर रहे थे डाउन साइड के लिए, ये फेल हो जाएगा। सो दिस नेक्स्ट वीक विल बी इम्पॉर्टेंट। सो कमिंग टू लोअर टाइम फ्रेम, वी हैव गुड अपॉर्चुनिटी ऑन बाय साइड। सो ये जो डिमांड जोन है 1.08562 टू 1.08357, दिस इज़ अ डिमांड जोन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस डिमांड जोन से अप टू द सप्लाई जोन यूरो यूएसडी में एक अपसाइड को मूवमेंट आया, एंड आई एम बुलिश ऑन यूरो यूएसडी फॉर द नेक्स्ट वीक। Coming to lower demand zone, the lower demand zone is from 1.07465 to 1.07240. Upside, the target as well as the supply zone is from 1.09 to 1.09328 to 1.09640. So this is supply zone and two demand zone. Price is bullish for the Euro USD for next week, or I'm planning for Euro USD trade as a bullish from the demand zone and the target will be the supply zone. तो ये हमारा bullish price रहेगा Euro USD में। Coming to next script, so next script is gold. So gold making high and high again. डिमांड जोन की बात करें, एक पोजिशनल अगर आप प्लेयर हैं आप गोल्ड के लिए, तो गोल्ड के जो डिमांड जोन है स्टिल वही वैलिड हैं जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, 71,315 70,900 एंड द सेकेंड डिमांड जोन इज फ्रॉम 69,900 टू 69,300 लेवल। ये दो डिमांड जोन हैं, जब भी इनमें ट्रेड आएगा वी विल प्लान फॉर लॉन्ग इन गोल्ड फॉर न्यू हाइस। इन केस गोल्ड अगर फिर से एक कंटिन्यूशन नया हाई को तोड़ता है, देन वी विल सी अ न्यू लेवल्स। अगर हमें नए डिमांड जोन मिलते हैं देन वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। तो डोंट ट्राई टू कैच ऑल द ट्रेड्स। कुछ ट्रेड आपको मिलेंगे, कुछ ट्रेड आपको आपसे छूटेंगे। डोंट बी फोमो, आप हर ट्रेड को नहीं पकड़ सकते। सो बी अ प्रॉफिटेबल, बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि यू हैव टू स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी। आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और दूसरा आपको वेट करना चाहिए। इन केस जैसे हम डिमांड एंड सप्लाई पे ट्रेड कर रहे हैं, सो आई हैव टू वेट फॉर द प्राइस टू कम टू आवर डिमांड जोन। वो पेशेंस, वही डिसिप्लिन, वही आपको एक लॉन्ग जर्नी में कंसिस्टेंट प्रॉफिट रखेगा। अदरवाइज यू विल टेक रैंडम ऑल द ट्रेड्स एंड ओवरऑल फिर लॉस होगा। तो बी स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी।
कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट दैट इज बिटकॉइन। सो बिटकॉइन में हमने जैसे डिस्कस किया था कि बिटकॉइन एक लिक्विडिटी लेने के बाद अगर डिमांड जोन के आसपास आता है वी विल प्लान अ लॉन्ग ट्रेड। सो स्टिल बिटकॉइन एक रेंज के बाहर आने के बाद एक डाउनसाइड मूवमेंट आया एंड डिमांड जोन की बात करें इट इज़ क्लोज टू 53,000 एंड अपसाइड एक सप्लाई जोन है अराउंड 69,124 टू 71,282, ये एक सप्लाई जोन है। सो प्लान हमारा रहेगा इन केस इस सप्लाई जोन से हमें कंफर्मेशन मिलता है देन आई विल प्लान अ शॉर्ट ट्रेड इन बिटकॉइन फॉर द टारगेट ऑफ लो साइड दैट इज़ अराउंड 53,000। इन केस इस सप्लाई जोन से पहले ही एक डाउन साइड को मूवमेंट आ जाता है देन फ्रॉम दिस डिमांड जोन आई विल प्लान अ लॉन्ग ट्रेड फॉर द सप्लाई जोन एज अ फर्स्ट टारगेट एंड 75,000 एज अ सेकेंड टारगेट। तो ये हमारा प्लान रहेगा बिटकॉइन के लिए। सो ट्रेड इन द जोन्स ऑलरेडी। तो स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक ये जो स्टॉक है टाइटन, ये मैंने टेलीग्राम में डिस्कस किया था आई थिंक ऑन वेडनेसडे और थर्सडे। तो यू कैन सी ऑलरेडी एक रिएक्शन आ चुका है। मैंने जब ये डिस्कस किया था ऑलरेडी अराउंड 3270 के आसपास था। स्टॉप लॉस वाज वेरी मिनिमल अराउंड 3220 एंड जिन्होंने भी लिया है कीप ट्रेडिंग योर स्टॉप लॉस, यू कैन ट्रेल 3250 एज अ स्टॉप लॉस। जिन्होंने भी टाइटन को बाई किया है स्टिल एक बाय रेंज में है। इन केस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑन डाउन साइड अगर अराउंड 3300 के आसपास आता है देन अगेन यू कैन बाय फॉर द टारगेट ऑफ 3475। ये हमारा टारगेट रहेगा टाइटन में। ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट स्टॉक is a buy again, that's a Ramco Cement. This stock I had discussed in my I think Facebook group. So ये Facebook group में हमने डिस्कस किया है, उसमें मैंने पोस्ट किया था एंड स्टिल एक रेंज में है। इफ यू हैड बॉट कीप नाउ यू कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस टू 740 लेवल और कंजर्वेटिव अगर सेफर साइड में और जाना है पोजिशनल में तो 715 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एक लॉन्ग का सेटअप है, आपको अगेन अपॉर्चुनिटी मिलती है डाउन साइड में and again plan for upside. The target is around 800. This gap is a target around 830 level as a target in Ramco Cement. So this is a buy setup in Ramco Cement. Coming to next stock is Persistent System. So ये भी stock मैंने already discuss किया है, ये हमने I think Instagram पे और Facebook पे discuss किया है, आप you can check out। और इसका भी सेम है, आप डाउन साइड अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है डाउन साइड में अराउंड 3400 के आसपास अराउंड 3450 के आसपास भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यू कैन टेक इट्स अ लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड। अपसाइड का टारगेट अराउंड 3800 है एंड प्लेस स्टॉप लॉस एट 3240 एंड लॉन्ग पोजिशनल अराउंड 3130 एज अ स्टॉप लॉस। ये आपका सेटअप रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम के लिए। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज गेल। सो नेक्स्ट स्टॉक इज गेल। गेल में भी बाय का सेटअप है, एक लॉन्ग सेटअप है। गेल को आप बाय कर सकते हैं अराउंड 200 लेवल। ये एक डिमांड जोन है, डिमांड जोन इज फ्रॉम 200 टू 190 लेवल। एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रख सकते हैं। कीप द स्टॉप लॉस अराउंड 188 एंड इट्स अ पोजिशनल स्टॉक, ए ऑल टाइम हाई के आसपास है एंड कीप राइडिंग दिस स्टॉक। if this stocks will give you a huge potential because it is all time high has a no target। जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई होता है then sky is the limit। so keep riding this stock until unless you get a bearish sign on a reversal sign on any time frame and keep the stop loss 188 and if you get an opportunity around 200 level buy it, target around 215 to 230 levels। ये हमारे फर्स्ट सेकंड टारगेट रहेंगे और यू कैन टेक अ स्टॉप लॉस, ट्रेल द स्टॉप लॉस एट द स्विंग लो पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर नेक्स्ट वीक। इफ यू रियली लाइक द कंटेंट please share with your friends, it will motivate me to continue the journey। Thank you, take care, bye bye।